Hello, welcome everyone, teachers and entrepreneurs. So, how are you? This is Abhinav Agrawal from Brainshala. Today, I'm here to discuss about the franchisee opportunity right now we have at Brainshala. So, let's start with that. So, these are the few things that we'll be discussing about in this particular video. So, basically, Brainshala हम क्या है, हम क्या करते हैं, हम क्या चीज करना चाह रहे हैं आज की डेट में and why we want to change the world or why we want to bring a change in the world. That's what we will discuss today. So, we have not much to offer, but we have something to offer that can change your life, basically. So, we are providing franchisee as of now. So, franchisee are one franchisee. We also say it a one-stop franchisee because we have experience in teaching, training, marketing, sales, and everything, and you'll be getting all of them just from us. So, our company. So, Brainshala, the full name of our company is Brainshala International Education Private Limited. So, this is an international company, as you can see, which is from India. So, we just don't want to cover the India, but we want to cover as much as the part of globe that we can. So we have just one vision. So our vision is to provide good content and quality teachers accessible to all the people, all the children, all the young entrepreneurs, all the people who want to learn. We just don't want to confine to small children and small students or the person who is just studying. We do have subjects for the people who want to change their life too. Like for the person who is already educated enough or already want to teach, they can start their own franchisee. And the people who want to learn something different in life, they can purchase our courses. So that's the thing. Our mission is very aligned to our vision, which is today's children are tomorrow's future. So what we want to say with this particular quote is, so जो आज के बच्चे हैं वो कल का फ्यूचर है obviously that is true, but how we are going to change is the thing we are providing. We want each and every student to be the best in their own field. आज कोई किसी बच्चे को ये नहीं पता है आज से 10 साल बाद वो क्या करेगा। आज कोई मैं 5 से 10 साल के जो क्राइटेरिया है उससे कोई भी एक बच्चा उठाता हूँ, कोई भी एक बच्चे से पूछता हूँ कि आप 5 से 10 साल बाद क्या करेंगे, उसके मन में बहुत सवाल रहता है। चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो या एनीवन, आज सबके बीच में सवाल रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा। These are the most common fields that we see in day-to-day life because our parents doesn't want, most of the Indian parents doesn't want a child to be exposed to DJing field or some sports field, activity field, artistic field. They want a particular secure future for their child, and then they can do whatever they want. That is very general, and even I am one of them. I couldn't disagree with that. So they just want what's good for their child. But as of today's innovative mindset, today's technological universe, we have to move according with that. So we'll start. So our company. So we have 10 plus years of experience. The teachers with us, the founder members, other team members, we have almost more than 10 years of experience. The students and the franchisee that is giving study to students or the students who are getting taught here are global. We have students from we have students from Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, US, UK, Dubai. So we have particularly students from more than 7 to 8 countries as of now, and experts. So what we deal in is, as our company says, Brainshala. So this is a particular company made to make the use of your brain in a very proficient and efficient way. Just because our brains are not utilized as much as we want to,
or as much as we can. So just for that reason, we'll say that we want you to use your brain as much as possible, because a normal person uses their brain not more than like 5%, 7%. So we'll get used to of it. So as I've told you this, our courses. So Brainshell is offering you 15 courses as of now in one franchisee opportunity or one franchisee at one location. You can provide students 15 different courses. आप एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में 15 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, क्लास बाय क्लास, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट. यू कैन change the subjects, you can change the learning, you can change what they are learning and everything. So these are the courses I'll discuss about this. So as I've showed you all the courses, I'll just give you a brief about all the courses. Abacus and Vedic Maths. Abacus is a basic mathematics tool that has been used from much past time that we don't even agree of. There's still a doubt that when Abacus was invented, actually. Abacus is just a tool to make your calculations easier. Abacus is just a tool which can utilize the four basic equations of maths, that is addition, subtraction, multiplication, and division. If we move a step forward from Abacus, वहां आता है वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स कुछ नहीं, बहुत पुराना इंडियन एशियन मेथड है फॉर फास्टर कैलकुलेशन. आज अबैकस हम क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बोलते हैं कि क्लास 10 तक के बच्चों के लिए अबैकस इज गुड. बट अबैकस के बाद क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैट में, जीमैट में, जीआरई में, जेडबलई में, नीट में, सब में काम आता है वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स इज नथिंग बट अ मैथ्स टूल, मैथ्स टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सो दैट योर कैलकुलेशन कैन बी इजियर. इसके अलावा आता है हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग में आज हर बच्चे को तकलीफ होती है. आज हर बच्चा लिख तो पाता है, लेकिन हैंड राइटिंग सुंदर है कि नहीं उसको खुद को नहीं पता. हैंड राइटिंग सुंदर कौन करेगा? आज 90% ऑफ द टीचर्स डोंट, या 90% ऑफ द स्कूल डोंट फोकस ऑन हैंड राइटिंग. बट यू नो व्हाट, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, कोई भी बोर्ड के अकॉर्डिंग, हर बच्चे की फाइनल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स हैंड राइटिंग को दिया जाता है. अगर टोटल हम देखेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो 4 से 5 मार्क्स दिया जाता है हैंड राइटिंग को. आज इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स नहीं आता. 99% ऑफ द पीपल हु deserve 100 marks in English don't get that, because it's a very known formula or very known rule. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड राइटिंग भी वही चीज है. आज किसी को भी 100% नहीं देखा होगा आपने. कोई भी एग्जाम में 100% क्यों नहीं आता? क्योंकि हैंड राइटिंग. अगर कुछ चीज आपने सही लिखी है और अगर उसकी आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, टीचर एक ही चीज बोलते हैं, सर यहाँ आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी है. तो वो हैंड राइटिंग में भी हम फोकस करेंगे. फोनेक्स एंड स्पीकिंग. आज इंग्लिश सब बोल लेते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आना, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक होना, हर चीज का एक्सेंट जो है वो ठीक होना, दैट कम्स इन फोनिक्स. ग्रामर एंड वोकैब. आज इंग्लिश के फ्रेम, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं अपन. सो आई से माय नेम इज अभिनव. सो अगर मेरे को इसको पास्ट टेंस में बोलना है, अभिनव वॉज केप्ट माय नेम. इसको फ्यूचर में बोलना है तो वो नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि कल अभिनव था, आज अभिनव है. इन फ्यूचर मेरा नाम चेंज हो गया तो. सो दैट इज द थिंग. बट वही, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी अम, ये वीडियो में हूँ, मैं अभी ये सेमिनार ले रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग द सेमिनार. अगर यही 1 घंटे बाद मेरे से पूछोगे तो आई से कि सेमिनार वॉज टेकन बाय मी. और अगर यही 1 घंटे पहले मेरे से पूछते तो मैं बोलता सेमिनार विल बी टेकन केयर, विल बी टेकन बाय मी. तो ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हो गए यूजिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो यही चीज है जो ग्रामर और वोकैब में हम सीखेंगे. आज इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनाना है, उसकी ग्रामर कैसे ठीक करना है, उसको बोलना कैसे है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कैलीग्राफी.
आज हैंडराइटिंग इज नॉर्मल थिंग जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। कैलीग्राफी इज मेनली यूज फॉर हेडिंग्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा सजावट के लिए, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए वी यूज कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी भी तीन टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल पेन से जो अपन कैलीग्राफी करते हैं। सेकंड आता है फॉक कैलीग्राफी। फॉक कैलीग्राफी में थोड़ी चौड़ी वाली पेन, आप सबने देखा होगा, हाइलाइटर जैसी पेन। और थर्ड आता है ब्रश पेन कैलीग्राफी। ब्रश पेन कैलीग्राफी मेनली प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर अपन उस ब्रश पेन में लगाएंगे उस हिसाब से वो डिफर करते हैं। सो दीज आर 6 courses. Apart from that, there are another courses that we'll talk about right now. We have 9 other courses. So we'll talk about DMIT. So DMIT refers to Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. सो डर इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं अपन। डर्मेटोग्लिफिक्स मतलब हाथ के ये पूरे फिंगरप्रिंट्स, ये पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स। इसके बाद आता है ये पाम का फोटो। तो डर्मेटोग्लिफिक्स मतलब फिंगरप्रिंट्स हो गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब जितने भी इंटेलिजेंस है अपने में उसकी टेस्ट। डीएमआईटी में कुछ नहीं, ये 10 फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, साथ में ये पाम की फोटो लिया जाता है। इससे हम इनहेरेंट या फिर बच्चा बचपन से कौन से कोर्स में अच्छा है, कौन सी चीज में अच्छा है, उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, उसको क्या पास ऑन हुई है उसके फादर मदर से, ये सब डिसाइड किया जाता है। डीएमआईटी इज समथिंग विच इज साइंटिफिकली मेड, एंड मेडिकल भी उसको अप्रूव करता है कि यस, DMIT is 97 to 99% accurate. सो ये हम कुछ भी खुद से नहीं कर रहे। DMIT इज पर्टिकुलरली मेथड जो यूएस यूके में बड़े शहरों में किया जाता है, बट आज बहुत छोटे छोटे शहरों में तकलीफ होती है। DMIT का इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है, आज नाइन्थ के बच्चों को, लाइक जो एट्थ पासिंग है, जो या जो टेंथ पासिंग है, ट्वेल्थ पासिंग है, एट टेंथ ट्वेल्थ, ये तीनों पासिंग जो स्टूडेंट हैं, उनको सब्जेक्ट चूज करना रहता है, स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर चॉइसेस यहाँ पे करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम DMIT क्यों प्रेफर करते हैं? आज बच्चे को पता नहीं कि चलो मैं 11th में ले लिया साइंस, साइंस प्लस मैथ्स लाइक PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन मेरे को पता नहीं बाद में क्या करना है। आज मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, आज मैं लॉयर बन सकता हूँ, सीए कर सकता हूँ, आर्किटेक्चर कर सकता हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई से रिलेटेड। और अगर मेरे को और कुछ करना है तो बहुत सारी ओपन फील्ड्स हैं विच डजंट रिक्वायर स्टडी बैकग्राउंड, बट रिक्वायर टेंथ प्लस मार्कशीट। इसलिए ये डीएमआईटी से ये प्रूव हो जाता है। डीएमआईटी से एक थोड़ा सा अपने को क्लैरिटी मिलती है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है और कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ाना इसके लिए ठीक है। तो डीएमआईटी की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है 40 पेजेस अराउंड की, जिसमें उसके पूरे डिटेल्स दिए जाते हैं। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज चेस। आज चेस एंड रूबिक्स क्यूब, ये दोनों बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। चेस और रूबिक्स क्यूब दोनों ही अटेंशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। आज चेस में अटेंटिव रहना, रूबिक्स क्यूब में अटेंटिव रहना, आज माइंडसेट ठीक करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आज चेस और रूबिक्स क्यूब खेलने से, उसको सॉल्व करने से आज बच्चे का माइंड अटेंटिव भी रहता है, फोकस्ड रहता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, एंड दैट इज व्हाई दीज टू सब्जेक्ट्स वी हैव चूजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज सबको पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज है इन टुडेस लाइफ। व्हाई? एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है क्लास 10th का, क्लास 5th का, क्लास 12th का, या हो सकता है वो अपने कॉलेज क्लियर कर चुका है, लाइक बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। बट क्या वो क्या वो बच्चा आज 10 लोग 20 लोग के बीच में बोल पाएगा? ओके, चलो 10 लोग 20 लोग के बीच में बोल पा रहा है। क्या वो बच्चा 100 लोगों के बीच में बोल पाएगा एक सेमिनार में? ठीक है, वो बच्चा सेमिनार में भी बोल पा रहा है, बट क्या वो ह्यूज ऑडियंस, एन ऑडियंस ऑफ 500,000 लोगों के बीच में बोल पाएगा? एक स्टेज फियर, एक झिझक, वो चीज हमको दूर करना है। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम वही सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस, अटेंटिवनेस, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट द थिंग यू वांट, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेमोरी साइंस, मेमोरी साइंस और मिड ब्रेन, ये दोनों इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। वाई? आज जो आपको समझ में आ रहा है मिड ब्रेन, हमने तो हमेशा सीखा था एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। ये मिड ब्रेन कहा जाता है। ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में जो चीज है वो आता है मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन आज हम ज्यादा बायोलॉजी में नहीं पढ़ते, लेकिन बायोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस ये है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को अलाइन करने के लिए, इन दोनों को साथ में अटेंटिव रखने के लिए, ये दोनों साथ में फंक्शन करें, इसके लिए मिड ब्रेन का यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेमोरी साइंस। आज 10 से 9 से 10 से बच्चों को बहुत सारी चीज याद करनी पड़ती है। आज एक बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, प्लस 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल। तो वो बच्चा कैसे 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा? आज 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मेमोरी साइंस में ये किया जाता है कि आज बच्चों को जो चीज लर्न करने में, बाय हार्ट करने में जो दिक्कतें आ रही है, वो चीज को उसमें दूर किया जाएगा। स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन इज नथिंग, STEM, which refers to science, technology, engineering and maths. सो ये चार के इंटीग्रेशन से जो एक सब्जेक्ट बनता है, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे दुनिया चल रही है। आज लैपटॉप अपन यूज कर रहे हैं, फोन्स यूज कर रहे हैं रोज। एक अर्थ है, ग्लोब है, अपना ट्रैफिक सिग्नल है, एवरीथिंग इज वन ऑफ अ स्टेम एजुकेशन। सो स्टेम एजुकेशन में डे टू डे लाइफ में क्या इजी है, क्या हार्ड है, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो सब सिखाया जाएगा। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हर चीज रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से ही कंप्राइज होती है। हम फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं रोज, वाईफाई यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। हर चीज आज रोबोटिक है। हर चीज रोबोट बना रहा है। आज दिन में कितने करोड़ों मोबाइल बिकते होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी को पता नहीं। आज 1 करोड़ मोबाइल, 2 करोड़ मोबाइल कोई इंसान नहीं बना सकते। तो इसलिए वहां रोबोट काम आते हैं। तो ये बड़े रोबोट होते हैं, मैकेनिकल रोबोट होते हैं, इलेक्ट्रिकल रोबोट होते हैं, बहुत सारे टाइप के रोबोट होते हैं। हम बच्चों को जो सिखाने वाले हैं, दैट इज इन रोबोटिक्स, इज थोड़े छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो बच्चे खुद घर में बना सकते हैं, सो दैट उनको पता चले कि उनका इंटरेस्ट रोबोटिक्स में है कि नहीं, उनको मजा आ रहा है कि नहीं। रोबोटिक्स में कुछ हम बनाते हैं विच आर कार, सेल्फ मूविंग कार। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हम ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर बनवाएंगे, जिसकी हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम मिनी ATM बनाना सिखाएंगे, फ्रॉम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। साथ ही साथ हम जो किट देंगे उसमें 100+ एक्सपेरिमेंट्स हैं, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के। सो द लास्ट सब्जेक्ट, कोडिंग। आज की डेट में आपको पता होगा, इंडिया का सबसे बड़ा कोडिंग हब, इंडिया का सबसे बड़ा कोडिंग हब बोलते हैं बैंगलोर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली। वाई? आज इंडिया में जितनी बड़ी MNCs है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, सबकी ऑफिसेस है बैंगलोर में। और उनके पास 90% ऑफ द वर्कफोर्स दैट इज वर्किंग फॉर देम आर इंजीनियर्स। नॉट इंजीनियर्स, बट द पीपल हु डू कोडिंग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो इवन लॉयर्स, even the people who are from medical background and don't want to pursue, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उन लोग डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स करते हैं कोडिंग में, एंड दे गेट अ गुड जॉब जस्ट बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। आज कोडिंग की फील्ड इज अनलिमिटेड। आज हम फोन यूज कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन कोडिंग, एंड कोडिंग इज नथिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है 010101, बट दैट इज नॉट कोडिंग। कोडिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन, C++, जावा, सी लैंग्वेज। तो ये सब लैंग्वेज से जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कोडिंग। तो ये हो गया हाई लेवल कोडिंग, विच इज टॉट 10th क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद, मेनली इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। उसी का हम बेस पढ़ाएंगे ब्लॉक कोडिंग, जो बच्चों को कंप्यूटर में ही करना है बेसिकली, बट कोडिंग से उनको ये पता चल जाएगा, हमारी कोडिंग से, ब्लॉक कोडिंग से ये पता चल जाएगा कि इफ दे कैन हैव अ कोडिंग फ्यूचर या कोड बेस्ड फ्यूचर, सो दैट उनको आज से अपनी फ्यूचर की तो क्लैरिटी हो। एक वो चीज है। सो दीज आर द 15 कोर्सेज जो हम अभी ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। तो विल गो अहेड विद नाउ। सो एक ही प्रेमाइसिस में मल्टीपल इनकम। हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, एक फ्रेंचाइजी में कैसे इनकम हो सकती है। सो आप
खुद बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को हमारे पास भेज सकते हो, उनको कंटेंट दे सकते हैं। सो विल मूव अहेड। मैं आपको इस चीज के बारे में और डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, जिसमें हमारे तीन ऑप्शंस आते हैं। सो रॉयल्टी, हम आपसे जो भी फीस लेते हैं, जो भी फ्रेंचाइजी फी लेंगे, वॉट एवर द अमाउंट इज, उसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं है। आपने जो एक बार हमको फ्रेंचाइजी अमाउंट दे दिया, उसके बाद आपको 3 साल तक कुछ पैसा नहीं देना हमको रॉयल्टी में। आपके पास जो बच्चे आ रहे, बच्चे 500 दे रहे, 100 दे रहे, 1000 दे रहे, 5000 रुपये दे रहे, वो पूरा आपके पास रहेगा। उसमें से हमको ना 1% चाहिए, ना 5% चाहिए। ओके। The next thing, what we are bringing and the change that we want in the society, हम ये ला रहे हैं। आज हमारे कोई भी कोर्स, कोई भी 15 कोर्सेज जो मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी 15 कोर्स अगर बच्चे को परचेज करना है, उसका एक इंट्रोडक्टरी कोर्स लेना है, एक स्टार्टअप कोर्स जो हम बोलते हैं, वो कोई भी बच्चा 21 रुपीज में खरीद सकता है। ये 21 रुपीज का कोर्स हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप में अवेलेबल है। एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस 21 रुपीज के कोर्स के लिए, हमारे वेबसाइट और ऐप को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बट ये 21 रुपीज का कोर्स, इस 21 रुपीज के कोर्स में बच्चे को 7 वीडियोस मिलेगी। इस 7 वीडियोस में बच्चे को इंट्रोडक्शन मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, डे टू डे लाइफ में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या हेल्प करेगा, इन फ्यूचर वो सब्जेक्ट बच्चे के काम आएगा कि नहीं, ये बच्चे इस 21 रुपीज के कोर्स से डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज स्टार्टअप कोर्स, जो 21 रुपीज का हमारी वेबसाइट और ऐप में कंटेंट ओनली कोर्स रहेगा। ये कोर्स में लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी। द सेकेंड लेवल और द सेकेंड फेज, बिगिनर कोर्स। तो बिगिनर कोर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कंटेंट ओनली विच इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। द सेकेंड इज ग्रुप क्लासेस, जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट में, ऑफलाइन कोई भी सेंटर में, नियरेस्ट सेंटर टू देम, वहां एनरोल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज 1-to-1। कुछ पेरेंट्स है, कुछ बच्चे हैं जिनको ग्रुप क्लासेस में समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे और पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमको हर चीज अपने अकॉर्डिंग रहे। तो उन बच्चों के लिए हम लाए हैं 1-to-1 कोर्सेज। इस 1-to-1 कोर्सेज में एक बच्चा एक टीचर के साथ एंगेज होएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट डिपेंड्स ऑन द किड। सो वहां पे वो बच्चा 1-to-1 सीखेगा। एंड सो बिगनर कोर्स जब भी बच्चा एक कंप्लीट करता है, तो जैसे ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेट्स कॉल इट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जब बच्चा क्लास 1 स्टार्टअप कोर्स कंप्लीट करता है, तब बच्चा आता है क्लास 2 बिगनर कोर्स में। जब बच्चा क्लास 2 बिगनर कोर्स कंप्लीट करता है, तब वो आता है क्लास 3 एडवांस कोर्स में। सो एडवांस कोर्स में भी सेम मेथड है। वन इज कंटेंट ओनली कोर्स, जो हमारी वेबसाइट और ऐप में अवेलेबल है। सेकंड इज ग्रुप क्लासेस। सो ग्रुप क्लासेस में अगर ऑफलाइन क्लासेस है, सो विल ट्राई टू कीप क्लासेस की जो स्ट्रेंथ है एट मैक्स 20, सो दैट हर बच्चे के ऊपर टीचर का अटेंशन रहे। एंड द थर्ड इज 1-to-1 क्लासेस, सेम एज बिगनर कोर्स। कोई बच्चे को अगर सेलेक्टिव अटेंशन चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो 1-to-1 कोर्स में वो एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल। सो आपको मैंने बताया एक प्रिमाइसेस में बहुत टाइप के इनकम्स, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, जो आपसे ग्रुप क्लासेस ले रहे हैं, उनका तो पैसा आपको मिलेगा ही, विदाउट एनी डिडक्शन। अगर बच्चे को सिर्फ कंटेंट ओनली कोर्स चाहिए, तो कंटेंट ओनली कोर्स का कुछ परसेंट आपको मिलेगा। सो दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ इनकम। कोई बच्चा स्टार्टअप कोर्स ले रहा है, तो स्टार्टअप कोर्स का कुछ परसेंट आपको मिलेगा, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ इनकम। और कोई बच्चे को, जैसे अगर आपकी फ्रेंचाइजी में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, या टीचर एब्सेंट है, कुछ रीजन से टीचर नहीं है, तो वो आप हमको दे देंगे, हम उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को, और उसका भी कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलेगा। सो एक ही प्रेमाइसेस में बहुत टाइप के अ, आपके पास इनकम मेथड्स रहेंगे, 100%। सो ब्रीशाला, वाई? सो लेट्स टॉक अबाउट वाई ब्रीशाला। सो आपको हमारी फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए, क्यों? हर जन के एक मन में एक फिक्स सवाल रहता है, क्यों? सो विल गेट हायर विद दैट। आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक रेडी प्रोडक्ट है, कैसे? आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी, स्टूडेंट किट मिलेगा, हर चीज मिल रहा है। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ, किट के साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। सॉफ्टवेयर में, वेबसाइट में आपको खुद का लॉगिन मिलेगा, जिसमें बच्चे का प्रोग्रेस और सब चीज आप देख सकते हैं। आपको हर चीज घर में डिलीवर होके मिलेगी।
So it's a ready product. सेकेंड थिंग, एक्सटेंसिव सेटअप एंड रनिंग सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास एक फिक्स मॉडल है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उस फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या चीजें करना है, सो दैट आपकी जो फ्रेंचाइजी एकदम बूम होके सीधा रॉकेट लेवल में आगे बढ़े। सो दैट इज आवर थिंग। आपकी एक बार फ्रेंचाइजी चालू होती है, डे बाय डे आपको एक टास्क मिलेगा। अगर आपकी फ्रेंचाइजी जैसे आपको नहीं पता है क्या करना है, सो वी प्रोवाइड 90 डेज का सेटअप। 90 डेज एक आपको टीम लीडर मिलेगा या एक आपको सपोर्ट मिलेगा। वो सपोर्ट हर दिन एक टीम लीडर आपको फोन करेगा फॉर 90 डेज कि सर या मैम, आपको आज ये करना है, आपको आज ये करना है। तो वो 90 डेज में विल मेक श्योर कि आपका जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत अच्छे से चलना चालू हो जाए, बहुत बच जाए, आप खुद इंजॉय करें। थर्ड थिंग, फाइनेंस और मार्केट। आज जो हम क्लासेस कवर कर रहे हैं, क्लास 2 टू क्लास 12, मेनली एज क्लास 5, 5 साल से लेके 15 से 16 साल तक इज द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ इन इंडिया। ये जो टीनेज मार्केट है, टीनेज मार्केट इतना बड़ा मार्केट है दैट इट कैन नॉट बी डिफाइंड। सो दैट इज द थिंग। आज ये मार्केट बहुत ह्यूज है। आज इसमें कंपटीशन भी बहुत है, वी वोंट डिनाई दैट, बट विल मेक श्योर दैट वी आर अहेड ऑफ दैट कंपटीशन। फोर्थ थिंग, वरी फ्री कोलेटरल। आपको एक बार जो फ्रेंचाइजी फी दे दी है, कोई भी एक बिजनेस चालू करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो आपको मॉर्गेज में कुछ रखना पड़ता होगा, कुछ लोन उठाना पड़ता होगा, या किसी से पैसा लेना पड़ता होगा। हमको वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। आप केपेबल है, आप सक्षम हैं, तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लीजिए। विल हेल्प यू द बेस्ट। हमारे पास फ्रेंचाइजी लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल से लेके cheapest possible in the market है, with a quality material and quality training. फिफ्थ थिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग। आपको पूरी टीचर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग मिलेगी। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, नॉट नाउ, नॉट 1 मंथ आफ्टर, बट आपको 6 महीने बाद भी, 6 साल बाद भी अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ बैठे हैं। हम आपको हंग और ड्राई स्टेट में नहीं छोड़ेंगे। सो विल मेक श्योर ऑफ दैट। सो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट। सो एक बार आप हमारी फ्रेंचाइजी के एनरोल कर देते हैं, एक बार आप फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट्स चाहिए, सो विल हेल्प यू विद द फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी ओपनिंग, फ्रेंचाइजी लॉन्च एंड स्टूडेंट सपोर्ट। तो ये हम दो पार्ट में करते हैं। वन इज प्री लॉन्च एंड सेकेंड इज पोस्ट लॉन्च। प्री लॉन्च वो पार्ट है जहां हम ट्रेनिंग और लॉन्चिंग में फोकस करेंगे, और पोस्ट लॉन्च वो पार्ट है जहां हम सपोर्ट और ग्रोथ में फोकस करेंगे। हाउ? प्री लॉन्च में आता है करिकुलम ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। करिकुलम ट्रेनिंग ये होता है जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो हम टीचर को ट्रेनिंग देंगे, जो टीचर्स हमसे पढ़ के बच्चों को पढ़ाएंगे, दैट कम्स अंडर करिकुलम ट्रेनिंग। सेकेंड थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग ये है जो हमारे ऐप है, गूगल प्ले पे, ऐप स्टोर पे हमारे ऐप मिल जाएंगे। गूगल प्ले में ब्रेनशाला के नाम से, और वेबसाइट मिल जाएगी ब्रेनशाला.com के नाम से। उसकी ट्रेनिंग आती है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में ये रहेगा, आप बच्चों की अटेंडेंस दे सकते हैं, बच्चों का प्रोग्रेस दे सकते हैं, बच्चा कितना अच्छा कर रहा है ये देख सकते हैं, फॉर फ्री ऑफ चार्ज। ये सब चीज हमारा फ्रेंचाइजी में इंक्लूडेड है। ये हो गया, ये दो चीज हो गई हमारी प्री लॉन्च। साथ ही साथ आपको मार्केटिंग और सेल, आपको कैसे कस्टमर्स बुलाना है, आपको कैसे स्टूडेंट्स बुलाना है, उनका एडमिशन कैसे देना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको आएगा, आपका आपको स्टाफ कैसे रिक्रूट करना है, आपको अपना सेंटर कैसे चलाना है, आपको लॉन्चिंग कैसी करना है, सो दैट फर्स्ट डे में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशंस आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे आ जाए, वो सब सिखाया जाएगा। एक लास्ट चीज इसमें आती है, प्रेमाइस आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटर लेआउट। आज कोई भी शहर है, कोई भी बच्चा शहर के बीच में आना प्रेफर करेगा, कोई सुनसान एरिया में नहीं, कोई दूर एरिया में नहीं, जहाँ उसको अनसेफ फील हो, पेरेंट्स को लगे कि बच्चा हमारा इतना दूर जाएगा तो दिक्कत होगी, उसको दिक्कत होगी, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। तो विल हेल्प यू विद प्रेमाइस आइडेंटिफिकेशन, कि आपको अपना सेंटर किस लोकेशन में खोलना चाहिए। अगर आपके पास लोकेशन है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो विल हेल्प यू विद दैट टू।
पोस्ट लॉन्च, प्री लॉन्च में 5 फेसेस थे, पोस्ट लॉन्च में भी डिफरेंट फेसेस है। पोस्ट लॉन्च की जो फेस है वो सेल सपोर्ट फर्स्ट थिंग। तो आपको सेल सपोर्ट में क्या होगा, आपको मेन सेल्स क्या करना है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को आपको सेल्स करना है, स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है पेरेंट्स। आज आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट को समझाना है कि वाई दिस सब्जेक्ट, तो उसमें हमारी हेल्प रहेगी। टेक्निकल सपोर्ट में आता है कि ट्रेनर्स, टीचर्स बेसिकली, टीचर्स की जो क्वालिटी है, वी नीड टू कीप दैट द बेस्ट। टीचर आज कोई आ रहा है, टीचर यॉन कर रहा है, घूम रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, फोन में बात कर रहा है, तो वहाँ बच्चे अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। बच्चे को लगता है ये टीचर हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का भी। सो वी वांट क्वालिटी ट्रेनिंग विथ क्वालिटी टीचर्स। अगर टीचर्स में क्वालिटी नहीं है तो वील प्रोवाइड दैट। हम वो टीचर्स को इतना शार्प करेंगे कि उसको भी मजा आए और वो बच्चों को भी मजे में पढ़ाए। तभी एक अटेंटिव लर्निंग और इफेक्टिव लर्निंग होती है। सो पोस्ट लॉन्च में हमारे दो चीज और है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, जो हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको बच्चों की फी रिसिप्ट मिल जाएगी, एडमिशन प्रोसेस मिल जाएगा। आप यहीं से इंक्वायरी डाल सकते हैं बच्चे की कि बच्चे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपका डे टू डे जो एक्टिविटीज है वो बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आता है मैनेजमेंट सपोर्ट। आज मैंने बताया कि अगर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दो चीज बोली थी, वेलकम टीचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। और टीचर और एंटरप्रेन्योर, हर जन के पास बहुत टाइम नहीं होता, हर जन के पास बहुत सारी चीज करना है डे टू डे लाइफ में। उसके साथ हम एक एडिशन कर रहे हैं ब्रेनशाला। हम बाकी चीज तो अपने लिए कर रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि ब्रेनशाला आप करें बच्चों के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए। क्यों? ट्रेनिंग, क्वालिटी, टीचर्स, और हर बच्चे के पास अच्छी चीज पहुंचे, हर बच्चे के पास अच्छा रिसोर्सेस रहे, ताकि वो इन फ्यूचर आपका नाम ले कि यस मैं इन सर या मैम से पढ़ा था, who have portrayed me the way I am, and who have been a part of my successful journey. So that is the thing. These are some of the hard materials जो हम प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट में आपको हमारी बुक्स दिख रही है, जो रोबोटिक्स की दिख रही है पहली, सेकेंड वन इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बुकलेट है, ये रोबोटिक्स का ही एक पार्ट है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर की हमारी वर्कशीट दिख रही है। इसके बाद रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करने हैं वो सब चीजें, कर्सिव राइटिंग, चेस राइटिंग पैड। आज चेस सबको खेलना आता है, बहुत सारे लोगों को चेस खेलना आता है, लेकिन खेलते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं, ट्रिक्स क्या होती है, बहुत सारे बड़े बड़े जो ग्रैंड मास्टर्स है उन लोग कैसे खेलते हैं, वो सब चीज सिखाया जाएगा। इसके बाद अबैकस, तो अबैकस की लेफ्ट में बुक है और राइट में अबैकस टूल दिख रहा है। ये जो अबैकस टूल दिख रहा है, ये टीचर्स अबैकस टूल है। ये रहेगा करीब करीब 2 फीट करीब का रहेगा। ये टीचर्स यूज करेंगे, ये बोर्ड में दीवार में लगता है, हैंग हो जाता है वॉल पे। सेकंड, इसी में छोटा आता है 13 रॉड्स वाला, ये 10 रॉड्स वाला आपको दिख रहा है, 13 रॉड्स वाला आता है, दैट इज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स जो यूज करेंगे वो छोटा बैग रहेगा। इसके ऊपर ब्रेनशाला की आपको बैग और टी शर्ट दिख रही है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। इसके बाद बिगनर कोर्स किट आपको जो दिख रहा है, ये है हमारा रोबोटिक्स का बॉक्स। आज आपने जो बच्चों के गेम्स बॉक्स आते हैं वैसे ही कुछ ये बॉक्स है, लेकिन इसमें जो चीजें रह रही है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बच्चे से। नीचे आपको चेस का पैड दिख रहा है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का पैड रहेगा, रोलिंग पैड रहेगा रबड़ का, अलॉन्ग विद चेस की गोटियां, और उसके बाजू में आपको यूएस क्यू। सो दीज आर सम ऑफ द मटेरियल, पूरे मटेरियल हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो दीज आर द मटेरियल्स। मैन पावर कितना चाहिए आपको, कितने लोग चाहिए एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल सेंटर चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, सब चीज करने के लिए? एक या दो? एक टीचर कंपलसरी है। अगर छोटा सेंटर है, जगह छोटी है, तो एक टीचर खुद एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा सेंटर है जहाँ 100 150 200 बच्चे आ रहे हैं, या 500 बच्चों से ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सो हमारा जो सेंटर का लेआउट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा वेट करके बताता हूँ। हमारा पर्टिकुलर सेंटर का लेआउट भी डिफाइंड है, जहां आपको कुछ नहीं, सिर्फ हमको एक जगह देनी है, एंड विल हेल्प यू आउट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। सो ब्रेनशाला का कोर्स क्यों? तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, ब्रेनशाला सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल है अभी। ब्रेनशाला में डिफरेंट डिफरेंट जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हम पहुंच चुके हैं।
सो अगर हम अक्रॉस द ग्लोब पढ़ा चुके हैं, सो विल मेक श्योर कि हम इंडिया में सबसे बेस्ट चीज दें और बाहर भी वैसी दें। बिकॉज आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितनी भी एमएनसी है, जितनी भी हाई नेटवर्थ कंपनी है, सबके हेड, मोस्टली कंपनी के हेड इंडिया के हैं। आज सत्या नडेला हो गया, या डिफरेंट कंपनीज में आदार पुणेवाल जो कोविड की वैक्सीन बनाए, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एंड द कंपनी इज ऑल्सो बेस्ड इन इंडिया। बट गूगल, बाकी बड़ी बड़ी कंपनी में इंडिया के सीईओ, सीएफओ, सीओओ, तो ये सब इंडिया के हैं। सो विल मेक श्योर कि इंडिया का जो एजुकेशन है दैट स्टेज एट द टॉप। सो आज की लर्निंग, आज हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं बहुत नई नहीं है, लेकिन हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसे तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों को मजा आए। हम बच्चों को एप्लीकेशन देंगे, वेबसाइट देंगे, जहां वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। आज वो खुद की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो बच्चों के पास वीडियोस रहेगी जो वो ऑनलाइन अपने घर पे देख सकते हैं। कुछ चीजें समझना है तो तुरंत वो एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। सो वहां पे उनको एक पर्सनलाइजेशन, सुपरविजन मिलेगा, एवेल्युएशन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी और एक गाइडेंस सिस्टम मिलेगा। सो आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। हर बच्चे को, हर टीचर्स को, हर फ्रेंचाइजी ओनर को हर चीज मिल रही है इन वेरी लेस टाइम। आज कोई भी बच्चा हो या कोई टीचर हो, आज पैसा सब कोई कमा सकते हैं, आज पढ़ सब चीज सकते हैं, लेकिन पैसा कमाना एट अ वेरी लेवल जो वो उम्मीद करते हैं, और बच्चे को वो प्रोवाइड करना जो वो डिजर्व करते हैं, आर वे टू डिफरेंट थिंग। सो वी आर हियर फॉर दैट। सो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ब्रेनशाला से। आपको यहाँ पे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी सपोर्ट किया जाएगा थ्रू आर कोर्सेज। आज मैथ्स ओलंपियाड है, आज मैथ्स के बेस में कोई भी कॉम्पिटिशन्स है तो उसके लिए वैदिक मैथ्स और अबैकस है। इंग्लिश के कोई कंपटीशन है तो इंग्लिश के कंपटीशन के लिए आपके पास है कैलीग्राफी है, हैंड राइटिंग है, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब है, फोनिक्स है। ये सब चीज आपको हेल्प करेगा, और बाकी चीज इसके अलाइंड आपको हेल्प करेंगे। सो ब्रेनशाला के कोर्सेज क्या हेल्प करते हैं आपके, हमने आपको बताया ये चीज नई नहीं है, लेकिन कोर्सेज को जिस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, आज हमारी टीम बहुत सालों की ट्रेनिंग से, बहुत सालों के जो एक्सपीरियंस है उससे हमारी बुक्स बनती हैं, हमारे वीडियोस बनते हैं, हमारे लेक्चर्स बनते हैं, पढ़ाई कराने के तरीके बनते हैं। तो वो सब चीज आज आपको रेडी एक जगह पे मिल रही है। सो जो चीज मैं अभी तक आपको बोल रहा था, हम ट्रेडिशनल मेथोलॉजी यूज कर रहे हैं 20th सेंचुरी के मेथड्स में। आज वैदिक मैथ्स अबैकस बहुत पुराने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट बहुत पुराने हैं, लेकिन नए तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे न सिर्फ 99% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे बच्चे से, बट बच्चों को वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी रहेगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमारा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। हमारे एप्लीकेशन पेरेंट्स के लिए भी रहेंगे, बच्चों के लिए भी रहेंगे, सब चीज उसमें दिख सकता है। सो हु डजंट वांट टू बी अ सक्सेसफुल ब्रेनशालियन नाउ। आज कोई फ्रेंचाइजी भी है, फ्रेंचाइजी ओनर है, टीचर्स है, सबको ब्रेनशाला का सपोर्ट चाहिए। आज कोई बच्चा है उसको ब्रेनशाला से पढ़ना है। सो विल मेक श्योर दैट दिस थिंग कम्स इन इंडिया वेरी वेरी सून। पेरेंट्स को क्या बेनिफिट है, आज बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा भूल गया है कुछ कॉन्सेप्ट, तो पेरेंट्स वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के पेरेंट्स समझा सकते हैं बच्चे को, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। आज पेरेंट्स को कुछ डाउट है, उनको कुछ हेल्प चाहिए, उनको कुछ इन्फॉर्म करना है टीचर्स को, वो सब हमारा ऐप से हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इजी कम्युनिकेशन। आज बच्चे की प्रोग्रेस मेंटेन करना है, मेजर करना है, उसको मॉनिटर करना है, तो बच्चों का प्रोग्रेस पूरा हमारे ऐप पे दिख जाएगा। हमारा जो ऐप है ये बहुत कोई साइंटिफिक ऐप नहीं है, एक नॉर्मल ऐप है। आप इसमें सब चीज देख सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशंस। सो जो फीचर्स हमने अभी पेरेंट्स के लिए बताया, बच्चों के लिए बताया, टीचर्स और ट्रेनर्स को कैसे हेल्प करेगा। आज टीचर्स को कुछ भी चीज, स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो ऐप से बच्चों को भेज सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। अगर कुछ टीचर कुछ चीज भूल गए हैं, या कुछ चीज में उनको डाउट है, कुछ चीज में वो स्लो हो गए हैं ड्यू टू सम रीजन, तो हमारे वीडियो रेफरेंसेस रहेंगे फॉर टीचर्स टू। आपके पास जो रेफरेंस मटेरियल है, अगर
आपको बच्चों को हाई लेवल एग्जाम्स के लिए भेजना है, तो हाई लेवल एग्जाम्स के लिए हमारे पास एक्सटेंसिव रेफरेंस मटेरियल्स रहेंगे ऐप में, वेबसाइट्स में, जो आप यूज कर सकते हैं। आपकी जितने भी टीचर्स हमारे ऐप में पढ़ाएंगे, जितने भी टीचर्स हमारे ब्रेनशाला में हैं, आप सबका एक ग्रुप रहेगा, आप सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंचाइजी को क्या, अभी तक हमने बात की पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, बट व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजी ओनर? तो फ्रेंचाइजी ओनर को अटेंडेंस लेने में, एग्जाम्स में, सर्टिफिकेशन में, सब चीज में हमारा ऐप काम कर सकता है। अगर कुछ फ्रेंचाइजी को बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर करना है, नई किट्स मंगाना है, तो वो ऐप से हो सकती है। आज कुछ उनको इन्फॉर्म करना है हेड ऑफिस को, या फिर कुछ और करना है, तो वो सब भी हमारे ऐप्स के थ्रू हो सकता है। सो नथिंग मच, हमारा जो ऐप है, हमारी वेबसाइट है, ब्रेन चला खुद एक डिजिटल सॉल्यूशन है विच विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन रियल लाइफ। सो बिजनेस बेनिफिट्स, जितने आपके पास एडमिशन होंगे उतना आप कमाएंगे, जितने आपके पास एडमिशन होंगे उतना आपका नाम बनेगा, और उतने ही बच्चे आपके पास एनरोल करेंगे। जितने ही जूनियर और सीनियर मर्जर स्ट्रक्चर है, वहां पैसे भी उतने बचते हैं, रिसोर्सेज भी उतने कम यूज होते हैं, और टाइम भी उतना बचत होती है। आप विल मेक श्योर, जो हमारे कोर्सेज है, आज कोई क्लास है, तो बच्चे को पता है मेरे को नर्सरी से लेके क्लास 12 तक तो पढ़ना ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन से स्कूल में पढ़ना है, उसको ये नहीं पता कि कौन से स्कूल अच्छा है, उसको ये नहीं पता कि कौन से स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं। तो हम ऐसी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं जहां एक बच्चा अगर हमारे पास आ गया, तो ना कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़े, फॉर 1 महीना का सब्जेक्ट हो या 12 महीने के सब्जेक्ट हो, बट विल मेक श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े एंड उतना ही अच्छा करे। सो रिजल्ट्स विल मेक श्योर दैट हमारे टीचर्स इतने एक्सीलेंट है कि बच्चों का रिजल्ट भी आए, फ्रेंचाइजी का भी रिजल्ट आए, और टीचर का भी रिजल्ट आए अच्छा। सो जो हम सेंटर की बात कर रहे थे कि आपको 2 लोग 4 लोग कैसे रखना है, सो विल टॉक अबाउट दैट। ये हमारा एक सेंटर का लेआउट है। सो आपको 6 चीजें दिख रही है, 6 नंबरिंग दिख रहे हैं। नंबर 1 इज रिसेप्शन एरिया। कोई भी पेरेंट आता है, स्टूडेंट आता है, तो नंबर 1 एक नंबर जगह में बैठता है, वहां वो उनका वेटिंग एरिया है। सेकंड नंबर में उसके बाद आता है, सेकंड नंबर में क्या रहता है, एक काउंसलर अपॉइंट करना रहेगा। कोई अगर कोई फ्रेंचाइजी के पास 100 150 बच्चे हैं, तो उसको एक काउंसलर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों? कोई बच्चा आएगा, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसके कौन सा सब्जेक्ट में हेल्प करना है, या उसका डीएमआईटी टेस्ट अगर करना रहेगा, तो वो सब काउंसलर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड और सिक्स नंबर क्लासरूम्स है। दिस क्लासरूम कैन वेरी फ्रॉम 20 to 25 पीपल मैक्स। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एडमिशन और टीचर की थोड़ी सी कमी है, तो आप मैक्सिमम 25 बच्चों को एक क्लास में बैठा सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड 20 बच्चों की क्लासेस रहेंगी। नंबर फोर्थ इज आपका खुद का केबिन, डायरेक्टर केबिन या ओनर केबिन, जो भी फ्रेंचाइजी ओनर है उसका। एंड नंबर फिफ्थ इज पैंट्री एंड टॉयलेट एरिया। सो द लास्ट थिंग, फ्रेंचाइजी को कैसे लेना है एंड द स्टेप्स फॉर दैट। सो सबसे पहले, अगर आपको फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट है, तो विल सेंड यू अ फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन। एक आपको एप्लीकेशन फिल करना है गूगल फॉर्म में। उसके बाद हम आपको फोन करेंगे, विल अरेंज अ मीटिंग फॉर यू। जो भी आपको और डाउट्स है, जो चीज आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड इज आपको जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है फॉर फ्रेंचाइजी, और उसके साथ साथ जो पेमेंट है वो आपको देना रहेगा। स्टेप फोर्थ इज, अगर जस्ट इन केस आप बड़ा फ्रेंचाइजी खोलना चाह रही है एंड यू आर नॉट एबल टू फाइनलाइज द लोकेशन, तो मे बी 1 or 2 ऑफ आवर टीम मेंबर्स आपकी सिटी विजिट करेंगे एंड विल हेल्प यू फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ योर लोकेशन, कि कौन सी जगह में बच्चे ज्यादा है, कौन सी जगह में हमारा फ्रेंचाइजी पूरे शहर में दिखेगा। सो फिफ्थ पार्ट इज 90 डेज प्लान, जो मैंने आपको बताया था। आपको एक टीम लीडर अपॉइंट होगा, आपको हर डे की वर्किंग उनको रिपोर्ट करना रहेगा एट द एंड ऑफ द डे, ईओडी। और मॉर्निंग में आपको हर दिन टास्क मिलेगा फॉर 90 डेज। नंबर 6, ये सब चीज हो गया। सो वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू लॉन्च द ब्रेनशाला फ्रेंचाइजी एट योर ओन सिटी, you being the owner and we being the support agents for you. Thank you.